So a very good morning to one and all. And as you're aware that today we got information from our school that we have to arrange online classes. So here we are, and I'll be taking two sessions today, like we used to take normally whenever we get online classes. And based on my previous experiences, what I have realized over the months, I could say that students are not taking these online classes seriously. See, this is my appeal to every one of you out there. Motive is not just taking online class and managing things with you all. Motive is to make you aware, to make you sound regarding this, what is called technology. So we should respect whenever situation, is beyond the scope of our imagination at times. We should not flatter our thought process and we should not feel like it's over now. Even for me, today morning suddenly I got to know that I have to take online classes. You can see my face, I'm not even ready for these classes. I just woke up and started preparing slides like hell. I have got many issues, like there is update in your laptop if you are not using it regularly. But despite all the problems that one is facing, same with me as well, one should never stop. you know you should not give up. That's what my motive is. I'm not just your teacher, I'm not just your mentor who is guiding you for IITs. Treat me as your senior friend in every respect of life, no matter how intelligent you are or how dumb you are. This doesn't matter in long run. Treat me as your senior friend who is guiding you for the better. Okay, with this, बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया, अभी पक रहे होगे तुम भी, मुझे पता है. तो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस फॉर्मली. तो आज कुछ पढ़ाने में कुछ ज्यादा खास है नहीं. विल ट्राई टू मेक दिस इंटरेस्टिंग. जब चीजें ऑनलाइन होती है तो आवर प्राइम मोटिव इज टू मेक द थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, आई शुड से. तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा मजा आए, और इसमें बहुत एफर्ट लगता है यार. इट्स नॉट दैट इजी. यू वोंट अंडरस्टैंड अनलेस यू डू इट ऑन योर ओन. ओके, फेयर इनफ. क्या आपको स्लाइड्स देखना स्टार्ट हुआ है अभी? Yes, sir. Okay, great. So today we will be doing some questions. As you are aware that we are done with enough of theories. Questions we'll be doing, but before we move on to questions, today I'll be teaching you wavy curve method at first place. 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है वेवी कर्व मेथड. एक बार आपको देखना होता है बस. वंस यू आर अवेयर कि अच्छा ऐसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, देन यू कैन गो फॉर टफ प्रॉब्लम्स एज वेल. वेवी कर्व मेथड इज व्हाट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स. ठीक है, वेवी मैथमेटिशियन का नाम होगा. मोस्टली देयर आर मेनी फिजिसिस्ट दोज हु वर्कड फॉर मैथ्स. गलती से उनसे मैथ्स की चीजें हो जाती है तो उन्हें मैथ्स में पढ़ना पड़ता है, बट उनका पर्पस कुछ और रहा होगा इन द बिगनिंग. सो वेवी कर्व मेथड, इस मेथड में क्या बताया गया है इसको आप ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, सबसे पहले व्हाट ही सजेस्टेड, जैसा उन्होंने कहा कि जब वियर्ड सा आपको एक्सप्रेशन दिख जाता है ऐसे x माइनस बी वन पावर के वन टाइम्स x माइनस बी टू पावर के टू, तो आपको एट फर्स्ट प्लेस बाय सीइंग इटसेल्फ विल फील लाइक व्हाट इज दिस, बहुत ही वियर्ड सा कुछ दिख रहा है. डरना बिल्कुल नहीं है. एक एक्सप्रेशन होगा, कोई फंक्शन होता है x का, जिसमें राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली वी हैव गॉट हेल लॉट ऑफ टर्म्स. बहुत सारे एक्सप्रेशन में टर्म्स इन्वॉल्व हैं, और टर्म्स इस तरीके से हैं कि फैक्टर्स के फॉर्म में x माइनस बी वन इज वन सच फैक्टर्स. एंड पावर k1 लिखने का मतलब क्या है? जब कभी आपको दिख जाता है एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या समझना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स विथ एक्स. सो x minus b1 power k1 is nothing but what this means is x minus b1 has appeared k1 times. ठीक है, x minus b1 कितनी बार आया है? It has appeared k1 times. ठीक है ना, appeared k1
टाइम्स k1 बार आपका ये x माइनस b1 का फैक्टर अपीयर हुआ होगा. Similarly, x minus b2 power k2 means this factor x minus b2 has appeared k2 times, and so on, till x minus bn power kn. And the same is for numerator as well. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही वियर्ड सा एक गंदा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे. इसको हमने कुछ इक्वेशन 1 बोल दिया. बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आप आराम से कर पाओगे. अब लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, where k1 k2 till kn and r1 r2 till rn belongs to natural numbers. ठीक है, जो यहाँ पे पावर है ना बच्चों, आपके कोर्स में जो रेलेवेंट है 12th ग्रेड तक जेई एग्जाम लिखने तक, वो रेलेवेंट क्या है, नेचुरल पावर होना चाहिए. मतलब कभी ऐसा ना हो कि x माइनस 4 की पावर 13/2 आपको डील करना पड़ता है. तो अपने जेई के कोर्स में रैशनल इंडिसेस आर इन्वॉल्व. ठीक है, रैशनल पावर्स के लिए होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स बोलते हैं. ऐसे ही बाइनोमियल्स में भी पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो k1 k2 till kn and r1 r2 till rn belongs to natural numbers, and the same is for b1 b2. ये सब पका रहे हैं, ये सब रियल नंबर होने चाहिए. ठीक है, रियल नंबर क्यों बोला है, क्योंकि देखो यार फैक्टर्स में क्या है ना कि x माइनस b1 इज समथिंग लाइक x माइनस 3/2 पे पावर 25 है. क्या मतलब है कि जो फैक्टर है x माइनस 3/2 इट हैज अपीयर्ड 25 टाइम्स, बट x माइनस 3/2 इज व्हाट, x इक्वल टू 3/2 इज 0. यही मतलब है इसका. तो अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि न्यूमरेटर में 0 बोलते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पोल्स बोलते हैं. विल सी दिस. तो अभी क्या देखा आपने कि b1 b2 b3 से लेके आपका ये दिस bn तक, b1 b2 till bn and a1 a2 till an are real numbers. Then to solve this inequality the following steps are taken. अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हमारे पास है, प्रोसीजर है, वी हैव टू फॉलो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बिफोर यू फॉलो दिस प्रोसीजर यू शुड नो पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर बिकम्स 0 आर कॉल्ड जीरोस. ये तो आप बचपन से जानते हो यार. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फैक्टर्स टू विच आर x माइनस 1 एंड x माइनस 2. तो जीरोस क्या है, 1 एंड 2, क्योंकि 1 पे भी 0 होता है एंड 2 पे भी बच्चों ये 0 हो जाता है ना. ऐसा है. तो न्यूमरेटर जब 0 हो जाए तो उसको हम 0 बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे. सिंगुलर और प्लूरल आप जानते हो, इंग्लिश ग्रामर है ये सब. और रूट्स ऑफ द फंक्शन, हमने ये भी बताया मैंने आपको कि जीरोस बोल दो, आप सॉल्यूशंस बोल दो, रूट्स बोल दो, दे आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, एंड वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स 0 आर कॉल्ड पोल्स. ठीक है, अब एक नया नाम है आपके सामने. अब यार सीधी सी बात है, मुझसे कोई कभी बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूमरेटर 0 हुआ तो आपने उसको जीरोस बोल दिया, पर आपको ये कैसे समझ आया कि डिनोमिनेटर 0 है तो उसको पोल बोलेंगे. भैया पोल समझ आए ना आए, एक बात तो समझ आती है ना कि डिनोमिनेटर 0 होने का क्या मतलब है कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड एट दोज सच पॉइंट्स. ठीक है, उन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर इज नॉट, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट आ जाए कि समहाउ इट इज बिकमिंग इक्वल टू 0. Denominator 0 means undefined. The expression undefined means what? आप समझते ही हो, डिफाइन नहीं है तो और पर्पस और मोटिव इज नॉट सेटिस्फाइड, तो हमने उसका एक नया नाम दे दिया है पोल. आपको बस याद रखना है कि इसको जब डिफाइन ना हो तो पोल बोलते हैं. अब डिफरेंशिएट तो करना था, ऊपर 0 है तो नीचे पोल है. ठीक है, अब देखना स्टेप्स क्या क्या है. फर्स्ट वी फाइंड द जीरोस एंड पोल्स ऑफ द फंक्शन. सो एट फर्स्ट प्लेस वी विल बी फाइंडिंग द जीरोस एंड पोल्स. कभी भी आपको एक्सप्रेशन इन्वॉल्व मिल जाए तो आप क्या करते हो, जीरोस एंड पोल्स को फाइंड कर लेते हैं. जैसे कभी ऊपर एक्सप्रेशन दिख जाए, नीचे एक्सप्रेशन दिख जाए. ठीक है, x माइनस 3 x माइनस 4. तो जब न्यूमरेटर 0 होता है तो 1 और 2 को आप जीरोस बोलते हो एंड यहाँ पे 3 एंड 4 को आप पोल्स बोलते हो. ठीक है, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड. Where denominator becomes 0, इसको आप पोल्स बोलते हो, है ना. Then we mark all the zeros and poles on the real line and put a vertical bar there dividing the real line in many intervals. क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो आप जीरोस और पोल्स देख के बता देते हो, ऊपर और नीचे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है वहां से आपने जीरोस और पोल्स बता दिया. Then we mark all the zeros and poles on the real line but and putting a vertical bar there
डिवाइडिंग द रियल लाइन इन मेनी इंटरवल्स, जैसे आपको रियल लाइन पे मिल जाए कि 1 2 3 4 ऐसे करके, यू नो, और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि 3 and 4 आर पोल्स एंड द सेम इज फॉर 1 and 2 इज दे आर जीरोस। तो आपने क्या किया कि रियल लाइन पे 1 2 3 4 को इस तरीके से आपने प्लॉट कर दिया। अब ये स्टेप बोरिंग सा स्टेप है, यू हैव टू पुट अ वर्टिकल बार देयर, यू नो, वर्टिकल बार जैसा कुछ सिंबल लगाते हैं ना, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे इंटरवल्स में आपने रियल प्लेन को, रियल लाइन को बांट दिया है। ये देखो मैंने इस तरीके से इलिप्टिकल शेप से आपको दिखाया, 1 2 3 4 और 5 अलग अलग टुकड़ों में, हिस्सों में हमने बांट दिया है, मेकिंग यूज ऑफ दीज 4 zeros and poles, ये लिखा हुआ है। Then we mark all the zeros and poles on the real line and put a vertical bar there, dividing the real line in many intervals. ठीक है ना? ये सबके पास नहीं पहुंचा है क्या लिंक? आई एम गेटिंग सम मैसेजेस लाइक, अच्छा अच्छा अच्छा, there are very few students I guess, and how many of them are there? 18 17, okay, चलो कोई नहीं। Then we have then third step goes like, पहले हमने सबसे पहले जीरोस और पोल्स निकाल लिया, तब हमने जीरोस और पोल्स को मार्क कर लिया। इस तरीके से वर्टिकल बार से आपने मार्क किया होता है तो बहुत अलग अलग इंटरवल्स में आप उसको ब्रेक कर पाते हो, ठीक है। Then third step goes like, determine sign of the function in any of the interval and then alternates the sign in the neighboring interval if the poles or zeros dividing the two intervals has appeared odd number of times, otherwise retain the sign। आपको तो आदत होगी नहीं एक कंप्लीट इंटायर स्टेटमेंट, इतनी बड़ी स्टेटमेंट झेलने की, मैं आपको बहुत प्यार से बताऊंगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस थर्ड स्टेप को आप मेरे स्टाइल से सीखो। वैसे बोला क्या आप समझ सकते हो, यू हैव टू डिटरमाइन द साइन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का साइन निकालना होता है इन एनी ऑफ द इंटरवल, किसी एक इंटरवल में साइन निकाल लेते हैं कि प्लस है कि माइनस है, और फिर आप अल्टरनेट कर देते हो साइन आसपास वाले नेबरिंग इंटरवल में if poles or zeros dividing the two intervals has appeared odd number of times, otherwise retain this sign। ये नहीं समझ आया होगा मुझे पता है, I have to take one example to make you understand, and मैं एग्जाम्पल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा दूंगा कि फिलहाल इसको आप 1 मिनट के लिए स्किप करो। फोर्थ क्या है, thus we consider all the intervals, the solution of gx greater than 0 is the union of the intervals in which we have to put the plus sign, and the solution of gx less than 0 is the union of all the intervals in which we have to put minus sign। चलो कोई नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, then it will be easy for you, don't see this question as of now, पहले मेरे एक एग्जांपल को आप देखो, इस एग्जांपल से चीजें शायद समझ आए। फॉर इंस्टेंस इफ वी टेक समथिंग लाइक, आपको कोई बोले कि यार आपको साइन निकालना है, साइन ऑफ x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2, तो आप साइन कैसे निकालोगे पहले ये सीख लो, तब आपको थर्ड स्टेप क्लियर होगा। तो x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 का साइन निकालने के लिए दिस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो पोल्स की बात तो हम करने नहीं वाले। अब न्यूमरेटर कब कब 0 होता है, एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, तो 1 एंड 2 को आपने इस तरीके से रियल लाइन पे वर्टिकल बार के थ्रू ड्रॉ कर लिया, और कितने इंटरवल में बढ़ जाती हैं चीजें, ये है पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, एंड दिस इज योर थर्ड इंटरवल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि साइन बता दो, तो आप साइन कैसे बताओगे, है ना, साइन कैसे बताओगे, ये भी लिखा हुआ था कि मैंने पूछा है साइन ऑफ दिस। बच्चों 2 के आगे आगे मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। ट्रिक क्या है कि आपको जब भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी ना, ग्रेटेस्ट, बी इट जीरोस और पोल्स, चाहे वो जीरोस हो जाए या फिर पोल्स हो जाए, कुछ सा कोई भी चलेगा, जीरोस और पोल्स। सो यू हैव टू पुट द ग्रेटेस्ट, I mean you have to first figure out the greatest zeros or poles involved in that expression, and beyond that point जो भी greatest होगा ना, जैसे 2 यहाँ पे greatest है, तो 2 के राइट हैंड साइड पे आप हमेशा क्या डालोगे, प्लस डालोगे। इसको आप ट्रिक मत समझो, फिर भी आप सोच सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स इजी पीस ऑफ केक है ये। तो देखो, यू जस्ट नीड टू पुट 3 इन प्लेस ऑफ 2, राइट। 3 कैसे डालेंगे यार, यहाँ पे 3 डाल दो ना, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 में जैसे आपने 3 डाला, for example we are just checking it for the verification of this plus sign, 3 minus 1 is 2 and 3 minus 2 is 1, 2 multiplied by 1 is 2 which is fairly positive, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, ठीक है, प्लस डाल दिया। 2 के आगे यार आप कुछ भी डालो, 2 के आगे आप कुछ भी डाल के देखो, हमेशा प्लस आएगा। क्यों, रीजन इज क्योंकि x माइनस 2 का जो फैक्टर है
इन दोनों में वही ग्रेटेस्ट फैक्टर है, और 2 के आगे तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा ना, x minus 2. x minus 2 is positive when x is greater than 2. It is negative when x is less than 2. But हम तो greater than 2 की बात करते हैं, तो it is always positive. I hope this is clear. अब एक बार बच्चों आपको साइन पता चल जाए, वेवी कर्व मेथड में यही कहा गया है, किसी एक इंटरवल पे आप साइन निकाल लीजिए. जो थर्ड स्टेप आपको कम समझ आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. एक किसी भी एक सेट ऑफ इंटरवल्स के लिए यू हैव टू फाइंड द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, एंड वंस यू आर डन विथ इट, जैसे ही हो जाए, उसके आसपास नेबरिंग इंटरवल के लिए आपको क्या करना होता है, या तो आप साइन को रिटेन रखोगे प्लस के साथ, या फिर आप अल्टरनेट करोगे माइनस के साथ. यही दो ऑप्शन है ना आपके पास, या तो आप उसके साइन को प्लस बताओगे या माइनस बताओगे, और तो कुछ बताने नहीं वाले. ठीक है, और कुछ तो आपको आता भी नहीं है वैसे, और 2 और 1 पे तो आपको पता है ये 0 हो रहे हैं. तो आपको समझ आना चाहिए कि 1 और 2 को मार्क करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार 1 और 2 पे चीजें 0 हो जाती हैं, तो 0 के आसपास बदल रहा होगा साइन, तभी तो यहाँ पे 0 है. 0 इन दोनों जगह पे है, तो हो सकता है दोनों तरफ पॉजिटिव ही हो, तो हमें पता कैसे चलेगा. तभी वेवी कर्व मेथड हम पढ़ते हैं इस एक्सप्रेशन के साइन को बताने के लिए. अब 1 से 2 के बीच में अगर मैं बात करूं आपसे, तो अब क्या होता है, एक बार आपको 2 के आगे साइन पता चल जाए, फिर आप देखते हो ये 2 आया कहां से. बच्चों 2 कैसे आया था, x minus 2 के फैक्टर से 2 आया है ना. अब वेवी कर्व मेथड के हिसाब से ये जो x minus 2 है ना, इस पे आप पावर देखते हो. सिंस x minus 2 लिखा है तो पावर इज 1, मींस इट हैज अपीयर्ड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स. मैंने आपको स्टार्टिंग में आज बताया था पावर होने का मतलब क्या है, कितनी बार चीजें अपीयर हुई हैं. तो यहाँ पे पावर साफ साफ 1 दिख रहा है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स दिस x minus 2 का फैक्टर हैज अपीयर्ड, राइट. जैसे ही चीजें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होती हैं, तो आपको इसके आसपास वाले इंटरवल में साइन को क्या करना होता है, अल्टरनेट करना होता है. अब साइन अल्टरनेट करने का मतलब क्या है, अल्टरनेट करने का मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो. ठीक है, आप सेम काम करने वाले हो 1 के आगे भी, मतलब 1 के पीछे भी, 1 के पहले भी. ये कैसे आया था, x minus 1 से आया. बच्चों यहाँ पे भी पावर 1 है, तो अगर 1 के आगे माइनस है तो 1 के पहले क्या हो जाएगा, वापस से प्लस हो जाएगा. तो दिस इज द प्रोसीजर. अगर गलती से भी इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में, अगर कहीं पे पावर ऑड की जगह इवन आ जाता, मान लो x minus 2 पे स्क्वायर आ जाता, बाई चांस ऐसा हो सकता है कभी. जैसे ही बच्चों आपने स्क्वायर देख लिया होता, तो आप जैसे 2 के आगे आगे प्लस है, वैसे ही 2 के पहले भी क्या रखते, प्लस रखते. आई होप इतना ही है यार वेवी कर्व मेथड. उसके बाद जो स्टेप 4 है उसमें ये बताया गया है कि आपसे क्वेश्चन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, कि आप जैसे इस क्वेश्चन में मैंने साइन पूछने की जगह तुमसे पूछ लिया कि कब कब ये पॉजिटिव है, तो तुम इसको देख के क्या बोलोगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक पॉजिटिव है, फिर यार ये 2 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है. इस तरीके से आप आंसर दे दोगे. अगर कोई तुमसे नेगेटिव पूछ लेता तो तुम क्या बोलते, 1 से 2 तक ये नेगेटिव. ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सबको समझ आया है. डू लेट मी नो बाय whatever means possible from your side, and then we'll proceed. समझ आया क्या, Yes, sir. सबको आया. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. अगर आपको समझ आ गया है तो इतना ही है वेवी कर्व मेथड में. अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ. मेरी ट्रिक क्या याद रखना है आपको, इसमें ट्रिक आपने क्या सीखा, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रूट या पोल 0 या पोल जो भी आ जाए, उसके राइट हैंड साइड पे, उसके ग्रेटेस्ट के राइट हैंड साइड पे हमेशा डाल दो प्लस. उसके बाद उसके पहले इंटरवल्स पे माइनस होगा या प्लस होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, कि वो जो फैक्टर है जैसे x minus 2 है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो आप साइन चेंज करोगे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया होता तो आप साइन रिटेन रखते. अगर आपको ये सच में समझ आया, याद हो गया है, तो इस छोटे से प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड इज this huge expression x minus 1 times x plus 2 times x minus 3 the whole square whole upon x minus 4 whole cube multiplied by x minus 5 raised to the power 4, and this entire expression is positive for which set of possible values of x. ऐसा पूछ रहे हैं, for which set of possible values. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप बहुत ही आराम से नंबर लाइन बनाओ. नंबर लाइन रियल लाइन को बनाने के बाद
आपने जीरोस और पोल्स देखना है, कोई भेदभाव नहीं है, जीरोस पोल्स आप बना लो पहले प्यार से। तो अब देखो x-1 के लिए बच्चों जीरोस क्या है, जीरो क्या है, 1 है। तो मैं अब आपका वेट भी कर सकता हूँ, आप भी बना सकते हो। -2 आएगा सबसे छोटे वैल्यू के लिए। देन वी हैव गॉट 1, 3, 4 and 5 as well. Okay, beyond this 5, since 5 is greatest, so if you remember this trick I have explained before, as I have explained, तो 5 के राइट हैंड साइड पे हमेशा कैसे रहने वाला है, प्लस। एंड 5 के पीछे, मतलब 5 से पहले छोटी वैल्यूज के लिए ये प्लस होगा कि माइनस, ये किस पे डिपेंड करता है, इस फैक्टर, इस पे डिपेंड करता है ना, x-5 का फैक्टर। दिस फैक्टर हैज अपीयर्ड इवन नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि पावर क्या है इस पे, 4 है। 4 होने का क्या मतलब है, दिस हैज अपीयर्ड इवन नंबर ऑफ टाइम्स। आपको क्या बताया गया, अगर इवन हो तो आप साइन को रिटेन रखते हो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर आप देखो कि x-4 कैसे आया है, x-4 has appeared odd number of times, minus, फिर x-3 has appeared even number of times, तो वापस से साइन रिटेन रहेगा, माइनस। then x-1 has appeared odd number of times, साइन चेंज होगा, प्लस आ जाएगा। then x+2 has appeared odd number of times, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये पूछ रहे कि आप बता दो कि कब कब ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप खुली आंखों से ध्यान से देखो कब कब ये पॉजिटिव है, इस जगह पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर लिखते टाइम आप ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, क्योंकि उन्होंने x के लिए वेरिएबल आपका x है, तो इस सिंबल इज बिलोंग्स टू। ठीक है, x बिलोंग्स टू -2 टू सॉरी दिस -2 to 1। -2 to 1 का क्या मतलब है कि -2 से 1 तक हमेशा ये कैसा है, पॉजिटिव। अब आपको लग रहा होगा सर आपने ब्रैकेट्स नहीं बनाए। बच्चों, ब्रैकेट्स बनाने से पहले वी हैव टू बी केयरफुल। क्या इस क्वेश्चन में इक्वालिटी इन्वॉल्व है, नहीं है। उन्होंने ग्रेटर देन 0 पूछा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं पूछा, तो कहीं पे भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है। क्लोज ब्रैकेट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट, दिस सिंबल। क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है क्योंकि वो कभी भी इंक्लूसिव होता है, मतलब अगर आपने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया तो वो उस पर्टिकुलर एक्सट्रीम को भी आपको इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पे -2 इज नॉट एट ऑल इंक्लूडेड, एंड द सेम इज फॉर 1 एज वेल। फिर -2 से 1 के बाद आगे आपको कब पॉजिटिव मिलता है, दूसरी बात 4 to 5, एंड देन वी हैव गॉट यूनियन 5 to infinity। अब मुझसे कुछ बच्चे पूछते हैं, यार ऑब्वियस सा एक डाउट होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर 4 से 5 लिया, फिर आपने 5 से इंफिनिटी लिया, तो व्हाई डोंट वी राइट डायरेक्टली 4 to infinity। तो मेरा उनको ये कहना होता है कि बच्चों, जब ये 4 से 5 और 5 से इंफिनिटी पे हमें ब्रेकअप करने पड़ते हैं, तो रीजन इज सिंपल कि 5 इज नॉट कंटेन्ड, है ना। अगर किसी तरीके से 5 आपका कंटेन हो रहा होता, जैसे क्लोज ब्रैकेट की बात हम करते हैं, तब आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते थे, 4 से इंफिनिटी। अगर किसी बच्चे ने फिर भी मान लो कहा कि नहीं सर मैं तो 4 से इंफिनिटी लिखूंगा, आप इस तरीके से बता दो, तो मैं फिर उनको ये बताऊंगा कि x बिलोंग्स टू -2 to 1 यूनियन 4 to infinity, बट देन यू हैव टू एक्सक्लूड दिस 5। मतलब ऐसे आप लिख सकते हो कि 4 से इंफिनिटी तक जा रहे हैं, बीच में सिर्फ 5 पे दिक्कत है। ठीक है, तो बोथ दीज आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, तो बीच में और कर देता हूँ, ये भी आपका एक फेयर आंसर है, करेक्ट आंसर है, एंड दिस आंसर इज करेक्ट एज वेल। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू विदाउट फेल। कैसा भी बच्चा हो, अगर वो पहली बार पढ़ रहे हैं आप, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अब तक। फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है, यू कैन ऑलवेज आस्क। राइट, shall we proceed? Shall we proceed? Yes, सर ये sir. साइन कैसे लेंगे एक बार? कौन सा साइन भाई? प्लस और माइनस वाले। अभी तो सुन नहीं रहा है अभी तब से। सुनो, इस बार समझ आ जाना चाहिए, ये जो प्लस और माइनस हमने लिया है ना, ये इस हिसाब से लिया है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, जीरोस या पोल्स जो भी हो, यहाँ पे 5 से ग्रेटर तो कोई वैल्यू नहीं है। आप ये कैसे डिसाइड करते हो -2 1 3 4 5? यहाँ इस एक्सप्रेशन को देख के
x माइनस 1 के फैक्टर में 1 आया होगा, x प्लस 2 के फैक्टर में माइनस 2 आया होगा। अब इनको हम प्लॉट क्यों करते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि इन जगहों पे ये चीजें जीरो के इक्वल हो जाती है, और डिनोमिनेटर में जो ये 4 और 5 है, इन दोनों पॉइंट्स पे तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमें जीरोस और अनडिफाइंड को प्लॉट करना होता है, क्योंकि वहां पे चीजें सर्टेन नहीं है, ठीक है। फिर आप देखते हो कि इसके आगे पीछे साइन का क्या चक्कर है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 5, उसके दाहिने तरफ राइट हैंड साइड ग्रेटर वैल्यू की तरफ हमेशा आप ले लो प्लस। ये ट्रिक है, हमेशा आप प्लस ले लो। अब एक बार आपने 5 के आगे प्लस ले लिया, उसके पीछे साइंस कैसे हैं ये किस पे डिपेंड करता है। स्टेप नंबर 3 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 3 को आप ध्यान से देखो, डिटरमाइन साइन ऑफ द फंक्शन इन एनी ऑफ द इंटरवल। मैंने क्या किया, उन्होंने बोला किसी भी इंटरवल में आप साइन निकाल लो, मैंने सबसे ग्रेटेस्ट वाले इंटरवल में लास्ट वाले इंटरवल में साइन निकाला होता है। एंड देन अल्टरनेट द साइन। फिर वो क्या बोलते हैं, पहले आप किसी इंटरवल में साइन निकालो और फिर आप साइन को चेंज करो, अल्टरनेट करो इन द नेबरिंग इंटरवल। इफ कब अल्टरनेट करो, अब इन्होंने कंडीशन बताई है। इफ द पोल्स और जीरोस, अगर पोल या जीरो जो भी है जिसने डिवाइड किया हुआ है उन दोनों इंटरवल को, हैज अपीयर्ड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम अपीयर होता है तो आप चेंज करो साइन को, अल्टरनेट करो, अदरवाइज रिटेन दी साइन। इसमें दिक्कत ही क्या है, सीबीएसई के बच्चों, इंग्लिश में लिखा हुआ है, थिंग्स आर प्रीटी इजी एंड क्लियर। बताओ आप समझ आया? यस सर। तो 5 के आगे आगे प्लस ले लिया, 5 के पहले 4 तक प्लस वापस से क्यों लिया है, क्योंकि ये जो x माइनस 5 का फैक्टर है ना, इस पे पावर यार इवन पावर है। इवन का मतलब क्या है, 4 बार आया होगा। तो उन्होंने पीछे क्या लिखा है कि अल्टरनेट कब करना है, जब ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो। अगर ऑड नहीं होते हैं तो क्या करना है, रिटेन करना है साइन को। साइन रिटेन करने का मतलब क्या होता है कि प्लस की जगह प्लस रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बीच में प्लस लगाया। अब 4 के पीछे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि x माइनस 4 का फैक्टर 3 बार आया है, क्यूब है ना, 3 बार आया तो ऑड टाइम्स है। तो आपको साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, अल्टरनेट करना होगा। इससे आसान क्या है लाइफ में, कुछ नहीं। फिर x माइनस 3 पे आप देखोगे, उस पे पावर 2 है, इवन है, तो क्या करोगे आप, वापस से साइन माइनस का माइनस ही रखोगे। फिर x माइनस 1 पे जाओगे आप, x माइनस 1 का फैक्टर ऑड टाइम्स आया है तो माइनस की जगह प्लस करोगे, साइन चेंज करोगे, ठीक है। आई होप यार समझ आ गया होगा अब तो, ठीक। अब अगर सबको समझ आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो आप 10-20 सेकंड लेके। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया वो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मेरी जो ट्रिक है ना, अभी प्लीज 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताया अभी, मैंने जो ट्रिक बताया है कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू के बाद चीजें ग्रेटर हो जाती है ना, आपको टेक सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू के बाद पॉजिटिव लिया था। इस ट्रिक की वैलिडिटी तब तक है जब तक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अबे ये कौन है, तुषार गुज्जर, व्हाट इज दिस यार, लास्ट वार्निंग है ये, पेशेंस का टेस्ट मत लिया करो आप। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, ये आप तभी ट्रिक लगाओगे जब x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर आप सब बच्चे, इसलिए मैं ट्रिक्स नहीं बताता आपको, क्योंकि ट्रिक्स बताता हूं तो आपको ट्रिक्स पे लूप होल्स होते हैं, फ्लॉ होता है हर ट्रिक में, तो उस फ्लॉ को याद रखना होता है। याद रख पाए तो बेहतर है, नहीं रख पाए तो गलती ही करोगे। अब इस ट्रिक में ड्रॉबैक क्या है, वो लास्ट पॉइंट क्या है जो आपको पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम इस ट्रिक को लगाते हैं x का कोएफिशिएंट हम 1 बना लेते हैं, पॉजिटिव भी हो और 1 भी हो, ठीक है। -1 तक एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर -1 है कोएफिशिएंट तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस बना लो, फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऊपर जो 2 टर्म्स हैं न्यूमरेटर में, वहां पे x का कोएफिशिएंट, पहले में तो x प्लस 4 ही है, इसको 4 प्लस एक्स को आप x प्लस 4 की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो हियर कोएफिशिएंट इज 1, तो इससे तो प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस फर्स्ट टर्म 3 माइनस एक्स, ध्यान से देखो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट इज -1, तो वी हैव टू मेक दिस कोएफिशिएंट +1। और किस तरीके से +1 बना सकते हो आप, बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए माइनस, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसके साइन में क्या हो जाता है, चेंज, ठीक है।
यहाँ पे मैं इसको अब चेंज करके लिख रहा हूँ। बच्चों मैंने आपको बताया होगा और आपको पता भी है, किसी इनइक्वालिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन कैसा हो, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप चाहो तो देख लो, 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, 4 तो 2 से ग्रेटर ही होता है। बट द मोमेंट यू मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड्स, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में किया क्या है, क्योंकि हमें वो ट्रिक लगानी है, क्योंकि ट्रिक से चीजें आसान हो जाती है, एक साइन पता चल जाता है किसी इंटरवल में, इसलिए हम वो ट्रिक लगाते हैं। अदरवाइज मुश्किल होगा आपके लिए, हर बार आप जा जाके चेक करोगे कुछ वैल्यूज पे, फिर आप पैटर्न लेके आओगे। तो इंस्टेड वी गो फॉर दिस ट्रिक। ठीक है, अब ये पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव क्यों बना दिया, आपको वो भी समझा दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा टू मेक दिस कोएफिशिएंट ऑफ x 1। अच्छा, एक बार ये हो जाता है, उसके बाद मैं ज्यादा टाइम ना लूं एक्सप्लेन करने में, तो चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हो। -4, we are plotting this put this what is called zeros and poles. -4, then we have 2, 3, 8 as well. 8 के आगे मेरे ट्रिक के हिसाब से हमेशा पॉजिटिव, देन x माइनस 8 पे पावर इवन है तो साइन रिटेन रहेगा। कितना आसान है ये। फिर x माइनस 3 पे पावर 5, 5 इज ऑड पावर, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। देन x माइनस 2 पे पावर कैसा होता है, ऑड है, तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। x माइनस 4 कैसे आया था, x प्लस 4 से आया था, उस पे पावर कैसा है, ऑड है, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ एक बार साइन रिटेन हुआ है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक जगह है x माइनस 8 जिसपे पावर कैसा है, इवन है, तो वहीं पे हमने साइन को प्लस की जगह प्लस रखा है, बाकी हर जगह पे अल्टरनेट कर दिया इसने। छोटी सी चीज है, इसको याद रखना है। अब लेकिन क्वेश्चन हुआ नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये कब कब लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो पहले तो आप नेगेटिव चीजों को देखो, लाइफ में नहीं देखना है नेगेटिव चीजों को, इस क्वेश्चन के लिए देखो। तो माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस कंटेन होगा, हाँ क्या कह रहे हो, -4 पे कंटेन्ड आएगा। हाँ। अब जैसे मनीष ने कहा कि सर -4 पे कंटेन आएगा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी कंटेन नहीं करा सकते आप कुछ भी, क्योंकि इन्फिनिटी इज समथिंग नॉन अचीवेबल। ठीक है, जैसे आपको कोई बोल देना कि आप 15 मीटर हाइट को छू के दिखाओ, आप नहीं छू सकते यार, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप खुद से कूद भी जाओ तब भी नहीं छू सकते आप। साउथ इंडियन मूवीज तो हम बना नहीं रहे, उड़ जाएंगे हवा में आप ऐसे। तो माइनस इन्फिनिटी इज समथिंग नॉन अचीवेबल, ठीक है, नॉट रीचेबल। तो इसमें आप हमेशा कैसा लगाते हो, ओपन। -4 पे क्लोज क्यों लगाते हैं, क्योंकि -4 को आप ध्यान से देखो कहाँ आया है -4, न्यूमरेटर में आप इस जगह पे अगर -4 पुट करते हो तो x प्लस 4 कैसा हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही x प्लस 4 -4 पुट करने से 0 आया, तो एंटायर एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा आपको, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है, यस। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, क्लोज। ठीक है, अच्छा, सेशन फिनिश हो रहा है, मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है आपको, तो प्लीज ज्वाइन दिस वन मोर टाइम। लिंक सेम है, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाना, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट है, नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं। आज वेबी कर्व मेथड के बाद मैं आपको 3-4 चैप्टर से क्वेश्चन दूंगा, बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक मिक्स करने वाले हैं, ठीक है। that will be all। आ जाना अगले सेशन में, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यही कारण है, जैसे मनीष ने कहा, -4 पे भी हम कंटेन करते हैं। फिर मैं यूनियन लगा रहा हूँ, फिर अब 2 से 3 तक जाना है जहां पे माइनस है। अब ओपन होगा कि क्लोज, ये किस पे डिपेंड करता है, देखो x -2 का फैक्टर नीचे है, अगर आपने 2 पे क्लोज लगा दिया, इसका मतलब है आप 2 को ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। आपने 2 को एक्सेप्ट किया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा बच्चों,